Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Today's topic is glycolysis. In glycolysis, we will study pathways, energetic and significance. What is the glycolysis? Glycolysis is composed with the or it come in the two Greek words. Yes, glycase and lysis. Glycase means sweet मतलब glucose. Lysis मतलब breakdown and splitting means glucose. If break down, then it convert into the pyruvate and lactate. Glycolysis means breakdown of glucose. It is also known as Embden-Meyerhof pathway. Yes, Embden-Meyerhof pathway को हम क्या बोलते हैं? EMP pathway. It comes in exams. What is the glycolysis other name? What is glycolysis synonym? Yeah, explain the Embden-Meyerhof pathway. If we talk about the introduction, what is glycolysis? Glycolysis is 10 enzyme sequence reaction. Yes, glycolysis 10 रिएक्शन में होगा. ध्यान रखिए 10 रिएक्शन में. इट कन्वर्ट इन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट. ग्लूकोज है जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है. साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का मेन सिंथेसिस है कि इट कन्वर्ट 8 ATP. Yes, when glycolysis break down, then it convert in the pyruvate and release the 8 ATP. In the oxidation process, yes, in the presence of oxygen, one molecule of oxygen is partially oxidized to 2 moles of the because glucose is a 6 carbon molecule and it break down to 3 carbon of pyruvate. मतलब is 2 molecules of 2 moles of pyruvate. This is the major pathway of glucose metabolism occur in the cytosol. Where it located and where its synthesis occur, where this metabolism occurs in the cytosol of the all cell. This is the unique pathway and because it is aerobically and anaerobically. Yes, aerobically क्या चीज़ है? Presence of oxygen. यदि एनारोबिक की बात करें तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द यूनिक पाथवे. इट परफॉर्म presence of oxygen as well as absence of the oxygen. That's why it is the unique pathway. It is also include formation of lactate from pyruvate. When glucose is break down in pyruvate, then pyruvate is also convert in the lactate. The glycolysis sequence, the reaction differ from the species to species. ये स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करेगा. इसका कैसा मैकेनिज्म है, क्या रेगुलेशंस है, एंड मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट फॉर्म. कितना मेटाबॉलिक फेट हो रहा है, पायरुवेट बन रहा है. इन एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लाइकोलाइज इज प्रील्यूड मतलब प्रिलिमिनरी. जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, C3 साइकिल है, क्रैब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. दिस ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रीलिमिनरी स्टेप. यस, प्रील्यूड. ग्लाइकोलाइसिस इज द सेंट्रल पाथवे है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. कैसे आपको बताते हैं, इट विल कम ऑन द सिग्निफिकेंस ऑल्सो. यस, ग्लूकोज इज द सेंट्रल पाथवे. हाउ इट ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल इन पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस करता है स्ट्रक्चर्स पॉलीमर्स का एंड इट स्टोर इन द ग्लाइकोजन स्टार्च एंड सुक्रोज. व्हेन बात करें ऑक्सीडेटिव वाया, जो हम पढ़ रहे हैं आज ग्लाइकोलाइसिस. Yes, oxidation via glycolysis. Glucose is break down is pyruvate to raise the topic and glucose. When glucose is converted in ribose 5-phosphate means oxidation via pentose phosphate pathway. ठीक है, P3 pentose phosphate pathway. This is the major pathway of the glucose uterus. Glucose is the center molecule for the many biological function. It is also come in the significance. This is the basic outline. We will study step by step. Glucose 6 पार्ट में कन्वर्ट होता है with the help of the hexokinase enzyme in the presence of magnesium. 1 ATP use. Yes, ATP is converted into ADP. 1 ATP air use and second ATP here use. In the next step, glycolysis 6-phosphate convert in the fructose 6-phosphate with the help of the phosphohexose isomerase enzyme. In this also help the magnesium ion. This is the irreversible. Means this is irreversible. When it occur in the two side, then it is the reversible reaction. Okay, phosphate 6-phosphate phosphate 1,6 bisphosphate बनता है. यहाँ पर भी एक ATP उठे with the help of the phosphofructokinase. Fructose 1,6 diphosphate is convert in the glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone 3-phosphate. Yes, it with the help of the aldolism.
This glucose is converted in the first glyceraldehyde, then glyceraldehyde one, and second it convert in the dihydroxy acetone. Glyceraldehyde first convert all process, then dihydroxyacetone is also in the next part of the glyceraldehyde. Means two molecule of glyceraldehyde is performed in each step. Means 2 glyceraldehyde monophosphate is converted into 2 1,6,3-bis phosphate, then 2 3-phosphoglycerate with the help of the different enzymes, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है, देन फॉस्फोरिल पायरुवेट में चेंज होता है. यहाँ पर आपको ये देखना है, अब यहाँ पर एक NAD यूज हुआ, कन्वर्ट इनटू NADH2. क्या चीज़ है ये? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. यदि हम H की भी बात करें तो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन. 1 NAD इट कन्वर्ट इन द 3 ATP. देन यहाँ 3 ATP आपकी 2 प्रोसेस में हो रहा है, ये 2 प्रोसेस में हो रहा है, तो ये कितने में? यहाँ 6 ATP. 2 NAD से 2 NADH2 बना, मतलब 1 से 3 ATP बना है, तो 6 ATP यहाँ आपके बने. 1 ATP आपका इस प्रोसेस में बना एंड 1 ATP प्रोसेस द हियर. These both are the processes substrate level phosphorylation, and this one is oxidative phosphorylation, where NAD is going to the mitochondria and through the electron transport chain it convert in the ATP. 2 phase है, first is preparative phase, second is payoff phase. First preparative phase, what is the preparative phase? In which glucose 6 molecule is converted to 3. This is the all 10 cycle. In the bifurcated मतलब डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. कौन से 2 पार्ट्स है? प्रिपरेटिव एंड पेयर ऑफ. यदि हम प्रिपरेटिव की बात करें तो फर्स्ट 5 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. दिस इज द 10 स्टेप एंजाइम रिएक्शन. फर्स्ट 5 is preparative and second 5 is the payoff. First 5 preparative. What is the first 5? In this which glucose is phosphorylated, मतलब 1 phosphate and addition. ATP yield fructose 1,6-bis phosphate. ठीक है, fructose 1,6-bis phosphate is split, break down हुआ 2 molecule of 3 carbon glyceraldehyde 3 phosphate में. Okay, then this first phase result in the cleavage of hexose ion. Yes, कार्बन 6 चेन का ग्लूकोज है, यहाँ क्लीव हुआ, काइनेज ओपन हुआ. Cleavage require the investment of 2 ATP. We have already seen 1 ATP in the first step, and this one step 1 ATP also used, then 2 ATP utilized in this preparative phase. And this one is the preparative phase. First 5 step 1 2 3 4 5. 5th स्टेप में ये होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, 1 ATP यहाँ यूज हुआ, 1 ATP यहाँ, तो टोटल 2 ATP यहाँ यूटिलाइज हुए. देन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना ग्लूकोज से एंड डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन बना. डाईहाइड्रोक्सिन ऑल्सो कन्वर्टेड इन द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल हो गया, 1 को. देन सेकेंड वन इसका फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से. दूसरा पे ऑफ, नेक्स्ट लास्ट 5 रिएक्शन. यस, 10 की है, फर्स्ट 5 प्रिपरेटिव, सेकेंड 5 द पे ऑफ फेज. In this mark the release of ATP molecule during the conversion of glyceraldehyde 3-phosphate 2 molecule of. In this first glyceraldehyde bana, then second one is dihydroxyacetone bana, then dihydroxyacetone is also converted into the glyceraldehyde. Then total 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate is complete in the whole process. Yes, here 4 molecule of ATP are phosphorylated to ATP. ठीक है, 4 molecule of ATP यहाँ पर phosphorylated हुए. Although 4 molecule of ATP are formed, जब 4 ATP phosphorylated हुए तो मतलब 4 ATP बने हैं. नेट रिजल्ट क्या रहा? 2 मोल ऑफ ATP पर मोल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज में. ठीक है, 2 वहाँ यूटिलाइज हुए, 2 यहाँ गेन हुए. देन 2 मतलब 2 का हम डबल करेंगे 4 में से 2 गए, 2 मोल्स ऑफ ATP इन द फेज फर्स्ट. देन सेकेंड पे ऑफ स्टेप क्या बोलता है? 6 7 8 9 10. लास्ट 10 5 रिएक्शन पे ऑफ में आती है. देन 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से यहाँ पे ये चेंज हुआ. देन 3 से 2 में, 2 से फॉस्फेनोल पायरुवेट, देन पायरुवेट में. इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस वेयर 1 का मतलब 2 डबल प्रोसेस चल रही है. 2 यहाँ पर 1 ATP बना, 1 into 2, यहाँ
1 × 2 बने, यहाँ 2। देन आप देखेंगे कि फॉस्फोग्लिसराइड फॉस्फेट यहाँ पर भी 1 ATP, मतलब 1 × 2 मतलब 2। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टेप वाइज। हमने मेन स्टेप पढ़ लिए, प्रिपरेटिव एंड पे ऑफ। देन अ प्रिपरेटिव एंड पे ऑफ all we will discuss one by one, step wise explanation. Yes, first one is phosphorylation. I have already discussed with you. Addition of one more phosphate group in organic compound, this is the phosphorylation. ठीक है, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। यस, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड हुआ, किससे? ATP यहाँ यूज हुआ। ठीक है, ATP यहाँ यूज हुआ, किस में कन्वर्ट हो? ADP में। एंजाइम क्या? एक्सोकाइनेज। ये क्या बना? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द फॉलो, बता दिए। सेकंड स्टेप में क्या बोलता है? आइसोमराइजेशन हो रहा है। आइसोमराइजेशन मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। इन दिस रिवर्स, दिस इज द रिवर्सिबल। ठीक है, ये 2 स्टेप हो रहा है। इन द कार्बोनाइट, कार्बन 1 and 2 फॉर्म कीटोज टू एल्डोज। आइसोमराइजेशन जब हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कीटोज की वजह से ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। थर्ड स्टेप phosphorylation. In this phosphorylation, 1 phosphate also added, then phosphorylate by the ATP, fructose 1,6 bisphosphate बन गया। यहाँ जो फ्रक्टोज था यहाँ 1,6 bisphosphate बना, and it is irreversible reaction catalyzed by the phosphofructokinase enzyme. Fructose 6 phosphate is converted to the fructose 1,6 phosphate. 1 ATP also, 1 phosphate removed, then there is add up fructose 6 phosphate से 1,6 bisphosphate. Step 4 is breakdown. Then glucose is converted into fructose 1,6 bisphosphate. It is into the breakdown of the 2 step. Yes, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate. अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फर्स्ट चीज का है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड, मीन्स इट इज 2 glyceraldehyde 3 phosphate. It complete process in the 2 step. Step 5 isomerization. Yes, isomerization. In this process glyceraldehyde 3 phosphate जो बना था फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से, इट इज चेंज इन द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यस, glyceraldehyde 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन with the help of triose phosphoisomerase. And step 6 क्या है? 2 molecule of glyceraldehyde are oxidized. Glyceraldehyde 3 phosphate catalyzed to conversion of glyceraldehyde 3 phosphate, मतलब 1,3 bisphosphate बना स्टेप 6 में glyceraldehyde 3 phosphate से। ठीक है, हेल्प एंजाइम क्या चीज कर रहा है? डिहाइड्रोजिनेज, glyceraldehyde 3 phosphate डिहाइड्रोजिनेज। रिजल्टेड रिएक्शंस क्या रहेगी जो हमने लैंग्वेज में बात की? glyceraldehyde 3 phosphate से 1,3 bisphosphoglycerate बनता है। यहाँ पर 2 NAD आयन एडअप होके 2 NADH प्लस बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ glyceraldehyde 3 phosphate डिहाइड्रोजिनेज। स्टेप 7 ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड ग्रुप वाज जनरेटेड। अब यहाँ हाई एनर्जी कंपाउंड जनरेटेड हुआ ADP फ्रॉम द ATP। फॉस्फोराइलेशन मतलब द एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू ADP टू गिव ATP। देखिए, दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट। क्या होता है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉर? क्लियर, इट इज ए मेटाबॉलिज्म रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP और GTP बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ADP और GTP में ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल। यहाँ ये डायरेक्ट ATP बन रहा है, यहाँ हमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ हमें माइटोकॉन्ड्रिया में रिक्वायरमेंट जाने की नहीं है। दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, डायरेक्टली ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में। द प्रोडक्ट दिस रिएक्शन 2 molecule ऑफ 3 phosphoglycerate। यहाँ पर रिएक्शन में 2 molecule बनते हैं 3 phosphoglycerate, क्योंकि 2 स्टेप में अब चल रहा है ये। 1,3 bisphosphoglycerate की 2 molecules में 2 molecule क्या बनते हैं? 3 phosphoglycerate। यहाँ पर भी आपके ATP फॉर्म हुआ, 2 ATP थे, क्योंकि 2 प्रोसेस में चल रहा है तो 2 ATP से 2 ADP से 2 ATP विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल। दिस इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जहाँ डायरेक्ट ATP बन रहा है।
स्टेप 8 क्या बोलता है, द रिमेनिंग फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इन 3 फॉस्फोग्लिसराइड्स मूव फ्रॉम द। स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि एस्टर लिंकेज जो ग्रुप है उससे 3 फॉस्फोग्लिसराइड से जाकर 3 कार्बन की जगह 2 कार्बन पर लग रहा है, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसराइड से अब बन गया 2 फॉस्फो, यहाँ मूव हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लो फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। क्या बनाया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्या एंजाइम अपना है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। स्टेप 9 डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस वेयर हाई एनर्जी फॉस्फेट इस कंपाउंड इज फॉर्म। हम कहते हैं हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है, मतलब डिहाइड्रेशन मतलब रिमूव, पानी रिमूव हो गया है, देन देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, इज द डिहाइड्रेशन। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज डिहाइड्रेट एक्शन ऑफ एनोलेज टू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पर एनोलेज एंजाइम है जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज फॉर्म विच 2 phosphoglycerate is converted or dehydrated by the enolase enzyme in which phosphoenol pyruvate. This compound is phosphate ester of the enol tautomer of the pyruvate. This is the reversible reaction. Yes, आपको पता है इंटरचेंजेबल रिवर्सिबल है। स्टेप 9 में क्या है, 2 phosphoglycerate से phosphoenol pyruvate बन रहा है विद द हेल्प ऑफ फिनाइल। अब डिहाइड्रेशन क्या है, देख लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल। स्टेप 10 लास्ट स्टेप है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द पीईपी टू एडीपी, यस, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से एडीपी में। दिस इज द लास्ट स्टेप, यस, दिस इज द इरिवर्सिबल, मतलब सिंगल स्टेप, ये इरिवर्सिबल। हाई एनर्जी फॉस्फाइल ग्रुप फ्रॉम द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू एडीपी, क्लियर, टू अब इस एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी यहाँ पर। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय किस एंजाइम से, पाइरुवेट का एंजाइम के से। दिस इज द सेकेंड सबस्ट्रेट। फर्स्ट सबस्ट्रेट में हमने देखा कि एक एटीपी बन रहा था एडीपी से, सेकंड सबस्ट्रेट लेवल भी क्या डायरेक्टली एटीपी यील्ड होता है। दिस इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फाइल रिएक्शन, यहाँ नॉन ऑक्सीडेटिव है, यस, विदाउट ऑक्सीजन, नॉन ऑक्सीडेटिव। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्ट इनटू द पाइरुवेट। अब यहाँ पर भी अपना एटीपी बना, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फाइल, जहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फाइल आपको बताया था, इट इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, डायरेक्टली एटीपी, यस, बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर से। ओवरऑल बैलेंस की बात करें तो ग्लूकोज 2 ATP, यहाँ पर हमें इसको 10 रिएक्शंस को जब हम बात करें तो ये टोटल हुई थी ग्लूकोज से। अब हमारा जो फाइनल क्या बन रहा था, ये सब चीज़ें बने, तो यदि हम इसको सिंगल कट करें 2 ATP से, यहाँ 2 ATP बचे, यहाँ पे जब आपकी बात करें 4 ADP से कटे तो यहाँ पर 2 ADP बचे, यस, ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट करा, ठीक है, 2H से 2H गया। यदि हम इसको ऐसे कट के देखिए तो आपका फाइनल क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस 2 ATP प्लस 2 NAP, इसे के बने 2 पाइरुवेट, 2 NADH, 2 ATP। क्लियर है, आप समझिए, 2 पाइरुवेट में 2 NADH, मतलब 3 दूनी 6 ATP, यहाँ 2 ATP, ठीक है, यहाँ 2 ATP का मतलब 2 NADH, यहाँ पे भी ठीक से, तो यहाँ पे 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पर टोटल 10 हुए। अब जो शुरू में यहाँ ATP यूज हुआ, यहाँ -2 हुआ, टोटल 8, यस, इन द कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस। यदि हम सबस्ट्रेट लेवल की बात करें, ओनली सबस्ट्रेट डायरेक्टली की बात करें तो ओनली 2 ATP, क्योंकि 4 बने, वहाँ पे जो फर्स्ट में यूनिट उसे माइनस के 2 ATP। दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एनर्जी यील्ड जब नेट गेन ऑफ द 2 ATP, यस, यहाँ पर 2 ATP यूज हो रहे थे, यहाँ पर 2 ATP सबस्ट्रेट में बन रहे थे, तो 4 हुए, 4 में से जब -2 किया तो नेट गेन ऑफ द 2 ATP। एनर्जी, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एनर्जेटिक्स, यस, हमारे जो आपके सिलेबस में हेडिंग है पाथवे एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंट, तो दिस इज द एनर्जेटिक, कितना एनर्जी यूज हुआ, फिर कितना एनर्जी रिलीज होके हमको टोटल नेट ऑफ द ATP कितना बना। हम देखते थे फर्स्ट स्टेप में आपका जब 2 NAD बना था तो 1 में जब 3 बन रहा है तो आपका 6 बना, 3 × 2, सबस्ट्रेट में 2 ATP बना, यहाँ सबस्ट्रेट में 2 2 4 हुए, तो 6 2 10 एंड 8, यहाँ टोटल 10 हुआ जो हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पे जो शुरू में यूज़ हुआ था कंजप्शन ऑफ ATP प्रिपरेटिव फेज में, ये -2 हो गया, टोटल 8। अंडर एनारोबिक, यस, एनारोबिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डज नॉट ऑपरेट। एनारोबिक मतलब स्टूडेंट्स एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट उस समय एब्सेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनारोबिक के लिए
नहीं ऑपरेट होता है, तो मतलब हमें एटीपी जो डायरेक्ट मिलेंगे वही हम यूटिलाइज कर पाएंगे। एनारोबिक में, एरोबिक में तो पूरे हीट हो रहे हैं। हैज़ द टोटल एनर्जी थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस, एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडर एनारोबिक। तो क्लियर, तो एनर्जेटिक्स में क्या हुआ, यहाँ नेट टू एनारोबिक की बात की हमने, तो यहाँ पे लैक्टोज ट्रांसपोर्ट चेन वर्क नहीं कर रहा है, तो एनएडी कन्वर्ट नहीं हो जाएगा एटीपी में। जो टोटल सबस्ट्रेट लेवल के जो एटीपी यूज हुए थे 4 में से 2 माइनस क्या, तो हम बात करें यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो ओनली 2 एटीपी ऑफ द पर मोल ऑफ द ग्लूकोज सिंथेसाइज। एनारोबिक कंडीशन, अब एरोबिक की बात की, एनारोबिक, अब हम पढ़ते हैं पूरा एनारोबिक। इन दिस एनारोबिक अकर इन द सेल, किन में होता है, जहाँ लैक ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो। कैसी, किस किस में, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, रीनल मेडुला, लेंसर कॉर्निया, यहाँ पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की लैक ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वाई हेयर पायरुवेट इज रिड्यूस बाय द एनएडीएच, पायरुवेट इज रिड्यूस हो जाएगा एनएडीएच से, किसमें, लैक्टेट में। पायरुवेट यहाँ लैक्टेट में चेंज हो जाएगा विद द विच एंजाइम के हेल्प से, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एलडीएच। द NADH यूटिलाइज इन द स्टेप ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन कैटेलाइज बाय द, जो ये यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, कैटेलाइज हो रहा है बाय द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन। NAD ये कहाँ पर यूटिलाइज हो गया आपका, जो हमने एरोबिक में पढ़ा था, यस, एरोबिक के स्टेप में पढ़ा था कि रिएक्शन में जहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वहाँ पर ये यूटिलाइज हो जाएगा। यदि हम बात करें, इसी को कंटिन्यू करें, यदि एनारोबिक की, तो द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट अलाउ NAD टू बी रीयूज, NAD यहाँ टू बी रीयूज, जो अभी बात की थी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में यहाँ रीयूज हो जाएगा। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस proceed even the absence of oxygen. This is the most important. Glycolysis is the unique pathway. It is also proceed in the absence of the oxygen. बिना ऑक्सीजन के से भी ये अपने प्रोसेस चलता रहेगा। The occurrence of uninterrupted मतलब बिना रुकावट, इंटरप्शन मतलब रुकावट, बिना रुकावट के ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी स्केलेटल मसल के अंदर। जब हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेयर O2 सप्लाई इज लिमिटेड। हैवी एक्सरसाइज मतलब स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कौन सी हो गई, जहाँ पर हम लोग बहुत तेज़ भागते हैं, दौड़ते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी की ग्रेट एफर्ट रिक्वायर्ड। स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कौन सी होगी, रिक्वायरिंग और यूजिंग द ग्रेट एफर्ट। देखिए ग्रेट एफर्ट, जहाँ ग्रेट एफर्ट्स ऑफ एक्सर्शन। यदि लैक्टेट सर्व एज द फ्यूल सोर्स ऑफ द कार्डियक मसल एज वेल एज ब्रेन न्यूरो, लैक्टेट क्या करता है, एज ए फ्यूल भी प्रोवाइड कराता है कार्डियक मसल्स में। कहाँ पर, आपके ब्रेन न्यूरॉन में। एस्ट्रोसाइट्स कहाँ होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स जो नर्व्स के चारों तरफ कवर होते हैं। एस्ट्रोसाइट विच सराउंड एंड द प्रोटेक्ट न्यूरॉन इन द ब्रेन के अंदर। फर्मेंट ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या करते हैं, लैक्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो एस्ट्रोसाइट्स है वो न्यूरॉन की चारों तरफ कवर है ब्रेन में, तब क्या करते हैं, यहाँ ये फर्मेंट ग्लूकोज टू लैक्टेट, ग्लूकोज से लैक्टेट में चेंज होते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी। लैक्टेट टेकन बाय द एडजस्टेड न्यूरॉन, जो लैक्टेट है वो न्यूरॉन के थ्रू ले लिया जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट से, कन्वर्टेड टू पायरुवेट से, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रैब। अब ये अपना आगे वाला प्रोसेस आएगा क्रैब साइकिल का, जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। अब प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझे तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टेट विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसको हम LDH भी बोलते हैं। NADH यहाँ पर यूटिलाइज होकर NAD में कन्वर्ट हो रहा है। ये NAD अब बता रहा है कि ग्लूकोट 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, जो हमारा एरोबिक की प्रोसेस है वहाँ जाके यूटिलाइज हो जाएगा, पायरुवेट से लैक्टेट में हो जाएगा। दिस इज द एनारोबिक, यस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे हम, पहले भी सिग्निफिकेंस की बात कर चुके हैं, जिसमें आपको लिखे ग्लूकोज इज द सेंटर, देन जो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो रही है वो लिखेंगे, और जो इसके अंदर सिग्निफिकेंस में आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि आपकी यहाँ जो काम कर रहा है अपना जो एनारोबिक के अंदर की जो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट कहाँ, इट इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट, ये आपका सिग्निफिकेंस होगा। सिग्निफिकेंस फ्यूल सोर्स ऑफ द, दूसरा सिग्निफिकेंस, तीसरा ये आपका लैक्टेट है जो ऑक्सीडाइज इन द क्रैब साइकिल
ये सब आपके सिग्निफिकेंस में आएंगे। एंड द लास्ट वन इज सिग्निफिकेंस इज ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो सभी जगह जाके अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरूवेट से लैक्टेट में जाएगा। यदि हम ग्लूकोज से ब्लड सप्लाई करेगा द टिश्यूज़ में, ग्लूकोज 6 से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाके राइबोज और NADPH सीक्रेट करेगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस। If you have any doubt, any query, please comment in the comment box. Thank you so much. Please like, comment and share, subscribe for my new one. Thank you.